Children, we were doing earthquakes and we had to start from type of earthquake waves. Now, on the basis of mode of travel of the earthquake waves, earthquakes are classified into three main types. तो कैसे earthquake की waves travel कर रही हैं, उनका mode क्या है, उसके basis पे earthquakes को तीन main types में divide करा गया है. पहला है primary waves. The primary waves, P waves और push waves. तो primary waves के क्या क्या नाम है? P waves और push waves are the first to arrive as they are the fastest. तो ये सबसे fastest होते हैं. These waves usually travel at a speed of about 6 किलोमीटर per second. मतलब एक सेकेंड में they can cover a distance of 6 kilometers. These waves cause relatively small displacements. पर ये waves बहुत छोटी displacement cause करती हैं earthquake के time पर. Now if you see this diagram over here, medium produced by P waves, particles are compressed and then expanded in the line of wave progression. These are the P waves. तो इसमें आप देख रहे हो कि motion पहले ऐसा होता है, it compresses, then ऐसे. Okay, so the particles are compressed, पहले compress करे जाते हैं और फिर expand कर दिए जाते हैं और line of wave of progression के साइड पर ये क्या करते हैं, ये काफ़ी small displacement ही करते हैं. Now coming to secondary waves. Secondary waves are also called S waves और shake waves. ये आती हैं primary waves के बाद. Their rate of movement is less than that of P waves. Rate of movement इनका P waves से छोटा है. These waves produce a strong shaking action. ये एक strong shaking action produce करते हैं और ये they do not pass through liquids. ये liquids में pass नहीं होते हैं. So if you see the S waves, motion produced by S waves, particles move back and forth ऐसे ऐसे, ये back forth ऐसे particles move करते हैं to the line at right angles. अगर ये है line of wave progression तो ये ऐसे ऐसे चलते हैं. Okay, now coming to surface waves. अगर first coming to surface waves से पहले primary waves और secondary waves में difference क्या है? Primary waves का first तो name, they are called P waves और push waves, they are called shake waves और S waves. फिर इनका they travel about at a speed of 6 kilometer per second. They travel less than that of P waves. ठीक है, ये काफ़ी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स क्रिएट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग शेकिंग एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और ये लिक्विड्स के थ्रू पास नहीं होते. तो दिस वाज द डिफरेंस. ओके, नाउ कमिंग टू सरफेस वेव्स. दी सरफेस वेव्स आर दी लास्ट टू अराइव. तो सबसे पहले आती है प्राइमरी, उसके बाद आती है सेकेंडरी वेव्स और फिर आती हैं सरफेस वेव्स. सरफेस वेव्स लास्ट अराइव होती हैं और ये डिफरेंस फर्स्ट इसमें प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स में ये भी डिफरेंस रहेगा कि दे आर द फर्स्ट टू अराइव एंड सेकेंडरी वेव्स दे आर नेक्स्ट टू अराइव आफ्टर प्राइमरी वेव्स. ओके, ये डिफरेंस ना भूलना. नाउ सरफेस वेव्स लास्ट अराइव होती हैं एंड ट्रैवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ और ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ट्रैवल करती हैं. These waves are very powerful and cause most of the damage. तो ये वेव्स सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा डैमेज भी यही वेव्स क्रिएट करती हैं. Their effect is not seen at great depths. मतलब अर्थ के अंदर इसका ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिखता है इफेक्ट. नाउ सरफेस वेव्स, particles produced by surface wave motion produced by surface wave particles move in a circular
path at the surface the motion diminishes with depth, मतलब जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। और आप देख रहे हैं सर्कुलर, ये कैसे सरफेस वेव्स हो गया है। अगर आप इस डायग्राम से कंपेयर करो तो ये अर्थ में आने से पहले का है, ओके, स्ट्रेट लाइन, पर आप देख रहे हो कैसे कैसे ये होता जा रहा है, एस वेव्स, पी वेव्स, फिर सरफेस वेव्स है। नाउ कमिंग टू studying earthquakes. The science that deals with earthquakes is called seismology. तो साइंस जो अर्थक्वेक्स में डील करती है उसको क्या बुलाते हैं, सीस्मोलॉजी, और इनके साइंटिस्ट, अर्थक्वेक साइंटिस्ट को क्या बुलाते हैं, सीस्मोलॉजिस्ट्स। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। तो इंटेंसिटी कैसे नापी जाती है एक अर्थक्वेक की, ऑन रिक्टर स्केल। The earthquake tremors are recorded by an instrument called seismograph. और earthquake में tremors कितने आए वो कौन रिकॉर्ड करता है, एक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड seismograph, जिसकी यहाँ पे फोटो भी दी हुई है ऑन द नेक्स्ट पेज। Now the Richter scale ranges from 0 to 9. Richter scale की रेंज क्या है, 0 to 9. An increase in 1 point on the Richter scale indicates that the force of earthquake is 10 times greater than the strength of the previous number. So रिक्टर स्केल की रेंज 0 to 9 है, और अगर इंक्रीज होता है एक पॉइंट रिक्टर स्केल में तो वो इंडिकेट करता है कि जो फोर्स है अर्थक्वेक का वो 10 टाइम्स ग्रेटर है उसके प्रीवियस नंबर से। The earthquake of intensity 6 and above are very destructive. और जो earthquakes intensity 6 या उसके ऊपर के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ना हमें पता चलेगा रिक्टर स्केल का नाम रिक्टर क्यों है। चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर was an American seismologist. In 1935 he invented the Richter scale to measure the intensity of earthquakes. तो उसने रिक्टर स्केल इन्वेंट करा था जिससे अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी मेजर करी जा सके। नाउ ये ना भूलिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट रिक्टर स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 9, कभी भी आ सकता है शॉर्ट वर्ड्स में, ओके। एंड वी विल डू द भुज अर्थक्वेक ऑफ 2001 इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इफ यू हैव एनी डाउट्स you will ask.